Hello dear students, today we shall study the how the image is formed. Image is formed by how the image is formed by the concave mirror. Okay, keep it in mind, keep it in your mind that it is mirror, image formation by concave mirror, not lens. Okay, and to have very interesting learning about the image formation by a concave mirror, we shall correlate it with the image formation by a convex lens after when we will understand about this concept. Okay, image formation by the concave mirror where object is there. Okay, three things are there. Object is there. See, question is, क्या बिना ऑब्जेक्ट के इमेज बन सकती है? नो. Whether the image, whether you can form, whether you can get any image without any object, you will say no. There must be an object. Okay, if object will be there, then image will be there, and this image formation we are going to form by the concave mirror. Okay, so here in this table you can see the position of object. Okay, for the every position of object there will be the corresponding position of the image. Okay, see, if the position of the object is at infinity, first position is, this is the first position, then the position of image will be at the focus. Okay, when the position of the image, position of the object will be beyond C, then the position of the image will be between F and C. At third number you can see here, if the position of the object is at C, then the position of the image will be also at C. Okay, now you see the size of the image. Now you see the size of the image at point number 3. The size will be same. Okay, yes. Now comes fourth thing, that is when the position of the object is between C and F, then the position of the image will be beyond C, and here you see the size of the image. Size is enlarged. Okay, now you see at the point 5, the fifth position of the object, when the position of the object is at F. F क्या है? F is the principal focus, and in earlier cases what is C? C is the center of the curvature of the reflecting surface of the concave mirror. Because we are here study about the image formation by a concave mirror for the different positions of the object. Okay, so there are 6 positions are there of the object here, and corresponding 6 positions of the image are there in our this given table. Okay, 1 2 here, 1 2 3 4 5 and 6. At the 6th place you see the position of the object, you see it is between P and F. What is P? P is pole and F is principal focus. If the image object is placed between P and F, then the position of image will be behind the mirror. Okay, and what will be size of the image? It will be enlarged. See in case number 5, that is the 5th position of the image. If the object is placed at point F, principal focus, then the position of image will be at infinity. Okay, and the size of the image will be highly enlarged. Okay, now you see in case number 2, that is the 2nd position of the object. Here the object is placed beyond C. Okay, then the position of image will be between C and F,
एंड द इमेज की जो साइज होगी उसकी होगी डिमिनिश्ड. ओके, नाउ यू सी एट केस नंबर 1, that is the first position of the object, and you see now the position of image, it is at the focus. When the object is placed at infinity, then the position of image will be at the focus. And what will be the size of the image? The image will be highly diminished, बहुत छोटी होगी, point size, मतलब इस तरह point size होगी. Yes, इस तरह से. Now you see the tendency of the size of the image. In the first case it is point size, in the second case it is diminished. Okay, and in the third case it is same size of the object. Suppose it is the size of the object की जो size है हम देखेंगे अब डायग्राम्स में, जो हम अभी डिस्कस किया है उसको हम डायग्राम में भी एज इट इज इन सारी जो फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, इसमें आपके इस टेबल में जो दिए गए हैं, पूरी टेबल में जो फैक्ट्स हैं चारों चीज़ों को लेके, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, इन सब चीज़ों को हम वहाँ रे डायग्राम्स में भी डिस्कस करेंगे. सी यहाँ देखिए अब साइज ऑफ इमेज, अभी मैं रे डायग्राम पे आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमें यहीं पे समझना है, फिर हम रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होगी वहाँ पर. अच्छा, see the size of image in first case it is highly diminished or point size. In the earlier case it is larger than the point size. Okay, जो point size है इससे थोड़ी बड़ी हो गई है, diminished है यार. Okay, in the second case it is more than point size. Okay, and in third case it is same size. Suppose it is the size of the image, then the size of the object will be equal to the size of the object. In the fourth case you see that the size of the image is enlarged. That is, enlarged means larger than the height of the image. Suppose कीजिए आपकी height image की ये है, तो इसकी जो जो ऑब्जेक्ट की जो रियल जो साइज या हाइट ये है, तो इसकी जो इमेज की जो हाइट है वो इससे ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगी, इससे ज़्यादा. एंड द फिफ्थ केस, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, देन द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी हो जाएगी. ठीक है. और सी इन द सिक्स्थ केस, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P and F, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, then the position of image will be behind the mirror. Okay, and the size of image will be enlarged. Now you see the nature of the image. In the first 5 cases, when the position of object is at infinity, in the first case you see, then the nature of image will be real and inverted. In the first 5 cases the nature of the image is the same, but in the sixth case, when the position of object is between pole and principal focus and the position of the image is behind the mirrors, when the size of the image is enlarged, the nature of image is virtual and erect. Okay, now dear students, you see in the ray diagrams, very first A represents the position, the first position of the object. Likewise B represents the second position, that is the second case where we have talked about in the table about the second position of the object. Okay, third is C is the third case, the third position of the object. D is the fourth position of the object. E is the fifth position of the object, and the sixth is the exceptional one where the nature of the image is virtual and erect. Okay, this sixth case. See first the position of object. What is object here? A and B. This is A and B is the object. Okay, and this A dash, B dash,
इज द पोजिशन ऑफ द इमेज, दिस इज हियर पोजिशन। समझने के लिए, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। अब सी एट इन्फिनिटी, तो जब एट इन्फिनिटी है पोजीशन ऑब्जेक्ट का, तो जो इसका क्या है, जो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, उसमें ये था कि जब एट इन्फिनिटी होगा ये, तो जो उसका पॉइंट साइज होगा एकदम ऐप पर है उसका इमेज, ठीक है, ऐप पर। इस केस में जो इमेज है वो ऐप पर है, ये जो ऐप है ना, ये जो अंदर जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट साइज है इमेज, जो पॉइंट साइज इमेज है, जो साइज, जो इमेज की जो साइज है, जो ये ए और बी जो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज की जो साइज है एकदम पॉइंट साइज है, एकदम ऐसे पॉइंट साइज। यहाँ पे जब पॉइंट साइज होगी तो हम उसको मार्क नहीं कर पाएंगे ऐसे ए डैश बी डैश, या नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉइंट साइज है। ओके, अब सी, नाउ यू सी इन बी सेकंड केस, with the position of the object is beyond C, this is C, what is C? C is the center of the curvature, ये जो curvature है इसका center of the curvature of the concave mirror। ओके, ये curvature का जो center है, ये इसका the center of the curvature of the concave mirror, ये जो center है, तो center से आगे है, इधर beyond है, ठीक है, तो इसको हम बियॉन्ड बोलते हैं, उसको इससे आगे, मतलब सी से आगे है इमेज, यहाँ इन्फिनिटी पर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड पोजीशन ऑफ इमेज इज, अब देखिए पहले वाले केस में यहाँ पे ऐप पर थी, अब यहाँ देखिए इमेज किसके आगे, बिटवीन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ गए, देखो इमेज। अब इमेज का नेचर कैसा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ऐसे, बी डैश ए डैश, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड साइज है, उल्टी साइज है, ठीक है। जब मान लो आप इंसान हो, ऐसे आप इंसान हो, आपकी इन्वर्टेड साइज कौन सी होगी, जब आपकी ये साइज हो उल्टी हो जाएगी इस तरह से, ये सिर हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए आपका ये हाथ हो जाएंगे, ये आपके पैर हो जाएंगे, तो ये आपकी इन्वर्टेड साइज है, ये इन्वर्टेड साइज है, और ये आपकी इरेक्ट साइज है ये, ठीक। तो ये साइज कैसी है, इन्वर्टेड है यहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। ओके, नाउ यू सी इन द थर्ड केस, द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस किया आपने, सी पर, दैट इज सी क्या है, सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द reflecting surface of the concave mirror, क्योंकि we are right now we are talking about the image formation by a concave mirror for the different positions of the object। okay, so यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको जो है ना, मैं मिटा देता हूँ इसको, मैं हटा देता हूँ तो ताकि आपको साफ दिखे। देखिए ये ए और ये बी, ए बी, ये क्या है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी। मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ए डैश और बी डैश है ना, ए डैश और बी डैश है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, देखो ए डैश बी डैश, सॉरी इमेज है, और ये ए और जो बी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, जो ए और बी है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसका प्लेसमेंट कहाँ पर है, वेर इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी। ओके, और ये जो आप देख रहे हो बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ये क्या है, ये इमेज है, इमेज है। ओके, सो दोनों की पोजीशन क्या हुई, ऑब्जेक्ट की और इमेज की पोजीशन क्या हुई, पॉइंट सी पर, एट पॉइंट सी। आप ये देखिए, मतलब ये थर्ड, जैसे ए बी सी, जो सी नंबर का है ना, इसमें दोनों की पोजीशन सी पर है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको दोनों की सी पर है। और इसका जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल टू ए बी के इक्वल होगा। अब आप देखिए, पहले केस में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है, इन्फिनिटी पे, दूसरे केस में ये आपके किसके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ये, और इमेज पहले कहाँ थी, ऐप पर थी, इमेज भी यहाँ से, या जो ऐप है यहाँ से किसके ऐप, आपकी इमेज भी इधर आ गई, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो इधर आ रहा है आपकी,
राइट हैंड साइड की तरफ। और जो पोजीशन ऑफ सॉरी यार ये दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये इट इज मूविंग टुवार्ड्स योर राइट हैंड साइड, ओके। और जो पोजीशन ऑफ इमेज है इट इज मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मूव कर रही है। अब थर्ड में देखिए, ये जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की ये आपकी यहाँ जो बियॉन्ड सी थी, ये जो बियॉन्ड सी है यहाँ जो बियॉन्ड सी है ना, ये यहाँ पे बी में देखिए आप जहाँ मेरा कर्सर, यहाँ जो बियॉन्ड सी है यहाँ पे जो इसकी इमेज है, ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ए और बी, जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन का है बियॉन्ड सी है। तो ये किस के कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया, और ये इधर मूव कर रहा है इधर राइट हैंड साइड की तरफ। और जो ऑब्जेक्ट जो इमेज की जो पोजीशन है वो भी किधर शिफ्ट हो गई, सी पे आ गई शिफ्ट होके। मतलब दोनों किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, देखो जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इधर बढ़ रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और जो पोजीशन है इमेज की वो भी किधर मूव कर रही है, वो कर रही है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आके कहाँ मिले, सी पॉइंट पे दोनों आके मिल गए। ये इधर से चल रहा है इमेज और ये इधर से चल रहा है सॉरी ये ऑब्जेक्ट इधर से चल रहा है आपकी राइट हैंड साइड से, इन्फिनिटी से इधर मूव कर रहा है आपके पोल की तरफ, और जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो पोल से किधर मूव कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए सी आ गया। अब फोर्थ में क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब देखिए ए बी, फोर्थ वाले मैटर में देखिए ए बी, ये आपका ए बी है, क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा इसका कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ में। और जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहां आ गया, बियॉन्ड सी से आगे आ गया खिसकता हुआ। पहले कहां था इमेज, यहां था आपका, ये एफ पॉइंट है ना, यहां पे इमेज था, यहां से खिसक के कहां गया, यहां से खिसकता हुआ ये यहां तक आ गया, ये बियॉन्ड सी आ गया। अब फिफ्थ में क्या टेंडेंसी होगी आप समझ सकते हैं। फिफ्थ में देखिए आप, ये था आपका इमेज बियॉन्ड सी से आगे था यहाँ इधर, ठीक है। अब ये पहुंच गए, ये देख रहे हो आप ये डॉट, ये इन्फिनिटी पहुंच गया। अब ये जो इमेज का जो पोजीशन था, और जो पोजीशन था ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पहुंच गया, चौथे केस में कहाँ था वो, बिटवीन सी एंड एफ था, बिटवीन सी एंड एफ था, जो मैंने अभी बताया, एफ और सी के बीच में थी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो कहाँ आ गई, ऑब्वियसली जो है वो खिसक के इधर आएगी, वो राइट हैंड साइड की तरफ आएगी। तो कहाँ आ गई, वो खिसक के एफ पर आ गई। ये देखो, ये जो ए बी है, जो ऑब्जेक्ट है ये खिसक के आ गया, इसकी पोजीशन का खिसक के आ गई, एफ पर आ गई है। एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस पे आ गई। और इमेज कहाँ, इससे खिसक के कहाँ चली गई, एट इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। तो साइज ऑफ इमेज भी आप देखते जाओगे कि साइज ऑफ इमेज जो है ना, आप देखिए तो अब साइज ऑफ इमेज का आप देखिए, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, साइज ऑफ इमेज के हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो साइज ऑफ इमेज जो है कैसे बढ़ती जा रही है, आप देखना, देखो अभी जो साइज इमेज की आप देखिएगा, अब देख रहा यहाँ पे पॉइंट साइज है ए में, फिर थोड़ी पॉइंट साइज बढ़ के बड़ी हो गई, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई पॉइंट साइज से। और सी में देखिए आप, जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो साइज थी उसके बराबर आ गया, है ना। और फिर डी में देखिए, डी में जो है वो जो उस इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो रियल साइज थी उससे बड़ा हो गया ये, है ना। और ई में देखिए आप, ये एकदम इन्फिनिटी पे चला गया, एनलार्ज्ड हो गया। और आप एफ में देखिए, एफ में जो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द मिरर बन रही है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देखिए ए में देखिए कहाँ पे पॉइंट साइज है इमेज, हम देख रहे हैं साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज है ए में। फिर पॉइंट साइज से ये देखो अभी दिख भी रही है यहाँ पर ए बी, ये जो ए बी है ना, ये ए बी, ये इसकी साइज है ये, ठीक है। यहाँ पॉइंट साइज थी थोड़ी बड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए सी वाले केस में, जहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज दोनों किस पर है, सी पर है। वहाँ क्या बनती है कि जो सेम साइज होता है दोनों का, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो, और जो इमेज की साइज है जो कि इन्वर्टेड आप नेचर भी साथ में देख रहे हो, डैश बी डैश ए, ये देख रहे हो ना, डैश है डैश बी, ये ठीक है। तो ये भी क्या हो गई,
दोनों की इक्वल होगी। अब आप देखिए डी वाले केस में ये साइज एनलार्ज हो गई, इमेज की साइज इससे बड़ी हो गई। तो आपका ऑब्जेक्ट था ए बी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ये, ठीक है, ये इससे बड़ी हो गई। और ई में देखिए आप, ये एकदम एट इन्फिनिटी चली गई है, बहुत भी बड़ी, ठीक है। और एफ वाले केस में देखिए इमेज कहाँ चली गई, जब आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आता है बिटवीन पोल एंड एफ, प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और देखिए नेचर देखिए, अब आपका यहाँ भी सीधा हो गया, ए डैश हो गया, ए डैश बी डैश, दैट इज अब यहाँ इमेज कैसे बन गई, अब ये इमेज जो है अभी इन्वर्टेड नहीं है, अभी इरेक्ट है, सीधी खड़ी है ये। जैसे आप यहाँ सीधे खड़े हो ना, यहाँ ऊपर, यहाँ जो आप सीधे खड़े हो ऐसे इरेक्ट है, लेकिन वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है वो, रियल नहीं है। जो अर्लियर जो 5 केसेस थे उन सब में इमेज क्या थी, रियल थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है। और जो 6th केस है ये वाला, इसमें इरेक्ट एंड वर्चुअल है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं। देखो जो हमारा वो था, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, अब आप इसको समझ पाएंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट द फोकस, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज होगी एकदम पॉइंट जैसी। और नेचर, तो ये जो फर्स्ट फिफ्थ जो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, जो डिफरेंट पोजीशंस में जो फर्स्ट जो फिफ्थ पोजीशंस हैं, वहाँ सब में इनकी रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। अच्छा, अब एक का हो गया, 2 का आप देखिए, 2 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ठीक है। तो इसमें पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसमें इमेज क्या होगी, मोर देन पॉइंट साइज, पहले पॉइंट साइज थी, अब मोर देन पॉइंट साइज हो गई। अब जब थर्ड पोजीशन में देखिए, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी पर है, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी किस पे होगी, सी पे होगी, और साइज ऑफ इमेज सेम साइज, एकदम सेम साइज, ठीक है। तो आप यहाँ इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ए की बजाय आप ए कर सकते हो, ए या बड़ा कैपिटल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, ताकि इस सी से आप इस सी को कोरिलेट कर सके, इस सी से इस सी को कोरिलेट कर सके, ठीक है। तो सी पे क्या हुआ, सेम साइज हो गई। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि ओरो में हो रही है। फिर आ गया केस नंबर अपना 4 या केस नंबर डी आ गया। इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये जो इमेज की जो पोजीशन है वो सी से पार चली जाती है, ठीक है, और साइज एनलार्ज हो जाएगी एकदम। अब आप 5th में देखिए, 5th में जब पोजीशन आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, तो आपकी जो इमेज की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी और हाईली एनलार्ज हो जाएगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और अब आप 6 देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट आपने रख दिया पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आपने रख दिया है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी मिरर के बाहर चली जाएगी। और कहानी क्या होगी यहाँ पे, एनलार्ज तो है ही, मतलब हाईली एनलार्ज से थोड़ी छोटी हो जाती है, मतलब आप मेजर कर सकते हैं हाँ भाई इतनी बड़ी है। लेकिन हाईली जब एट इन्फिनिटी भी होती है तो आप मेजर नहीं कर सकते, भाई बहुत बड़ी इमेज दिखाई, मतलब अनंत दिखेगी ऐसे, बहुत बड़ी, आप मेजर नहीं कर सकते कितनी बड़ी है, लेकिन यहाँ आप मेजर कर सकते हैं। दैट इज यहाँ थोड़ी इमेज छोटी होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा केस बन जाता है एक्सेप्शनल, क्योंकि जो नेचर ऑफ इमेज है वो बाकी जो 5 जो पोजीशंस हैं उनसे
अलग हो जाती है, एक्सेप्शनल हो जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट या सीधी खड़ी रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरह से, अब मैं आपको डायग्राम में, आपको दिक्कत नहीं है, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ इसका। देखिए जो फर्स्ट पोजीशन थी, आप ऐसे बना लीजिए आप पहले इसको। ठीक है, यस, आप ऐसे बना लो और आप सीधी ऐसे लाइन खींच लो, आप ऐसे इसको मार्क कर लो इसको। ठीक है, इसको पी से पोल, एफ हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस, या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, और इधर आपकी इन्फिनिटी होगी। तो आप इमेज को आप ऐसे इन्फिनिटी पे ऐसे कर सकते हैं उसको, ए और बी। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस, ए वाला मैटर हो गया। बी वाले मैटर में क्या होता है, इमेज इधर की शक्ति हुई आती है, इधर की साइड में आपके राइट हैंड साइड की तरफ आती है इमेज की शक्ति हुई। ठीक है, और तो ये इमेज अब इधर हम बनाते हैं, इधर बनाते हैं, सॉरी, ये अपना ऑब्जेक्ट का हो गया। अब ये इमेज का यहाँ बनाते हैं, यहाँ इमेज का आपके यहाँ इमेज है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज यहाँ पे। अब दूसरे केस में क्या होता है कि किस शक्ति क्या आ जाता है, यहाँ आ जाती है आपकी ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए बी, बी केस में। ठीक है, और फिर ये इमेज देखो इधर किस शक्ति दी है। अब ये इमेज जो है यहाँ से किस के इधर आ जाएगी दूसरे वाले केस में। एक केस में तो यहाँ है प्रिंसिपल फोकस पे आपकी इमेज है, यहाँ पे इमेज की शक्ति यहाँ आ जाती है आपकी, यहाँ आ गई इमेज। ठीक है, इमेज आपकी यहाँ आ गई, यस, इन्वर्टेड है, ए डैश बी डैश ए डैश। ठीक है, या हो गया आपका बी पोजीशन। अब थर्ड पे क्या होता है, थर्ड केस में आती है इमेज और इधर की शक्ति दे, इधर की सक्रिय इमेज। ठीक है, ये किस शक्ति आ जाती है, सी पॉइंट पे आ जाती है। ये मान लो ए बी सी पे आ गया, ए बी सी पॉइंट पे, तो इमेज भी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी इमेज। ठीक है, तो यहाँ जाएगा इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है इमेज, ये आ गई। तो यहाँ जो साइज है ना, ये जो साइज है, ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है और ये जो इमेज की साइज है, क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। तो ये केस आ गया आपका सी वाला केस आ गया। देखो अब ये देखिए इमेज भी कैसे मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है इमेज इस साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये मूव कर रही है। और ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये किधर मूव कर रही है, राइट हैंड साइड मूव कर रही है। अब दोनों यहाँ की मिल गई, दोनों यहाँ सी पे मिल गई, दोनों सी पॉइंट पे। अब फोर्थ में क्या होगा, जो ये पोजीशन है इमेज की, वो किस शक्ति आ जाएगी, यहाँ जाएगी, सॉरी, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ किस शक्ति आ जाएगी, है ना, जहाँ पे इसकी इमेज थी यहाँ आ जाएगी। और इमेज जो है यहाँ से किस शक्ति इधर आ जाएगा, बियॉन्ड सी। ठीक है, चौथे वाले मैटर में ये इमेज आ जाएगी और ये क्या होगी, एनलार्ज, और बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी ऐसे, बी डैश ए डैश। ठीक है, फोर्थ वाले केस में। और फिफ्थ वाले केस में क्या होगी, अब इमेज ऐसे मूव कर रही है ना ये। फिफ्थ वाले केस में क्या होगी, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा एफ पर, फिफ्थ में एफ पर आ जाएगा। और जो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, एट इन्फिनिटी आ जाएगी, जहाँ जहाँ पहले ए बी था ना, वहाँ पे आपका है इसका आ जाएगा ये बी डैश ए डैश। ठीक है, और जो सिक्स्थ पोजीशन होगी, सिक्स्थ पोजीशन क्या होती है कि सिक्स्थ पोजीशन में ये तो आपका हो गया फिफ्थ ई पोजीशन तक हो गया, ये 5 तक हो गया। ये सिक्स्थ में क्या होती है कि इमेज आपकी बनती है इसके पीछे, बिहाइंड द मिरर। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ठीक है, तो इस मिरर के पीछे बनेगी ये इमेज। लेकिन अब की बार ये होगी इन्वर्टेड नहीं होगी, ये इरेक्ट होगी इमेज। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, ऐसे करके ये इमेज की पोजीशन आ गई। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आपका सिक्स पोजीशन में, ये जो एफ है और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच में आपका यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पर ए बी आ जाता है, आपका ए बी आ जाता है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूव करती है। वो ऑब्जेक्ट किधर मूव करता है,
राइट हैंड साइड, ठीक है, और इधर से जो इमेज है, इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझने के लिए देखो, अब यहाँ आप कंफ्यूज मत हो ना, ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया ना, ये क्या था, ये था अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और लेंस। हाँ कंफ्यूज मत होना, ये था कॉनकेव मिरर। अब हम आपको सही समझने के लिए, बिल्कुल सही समझने के लिए आप इसको किससे कोरिलेट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, नहीं लेंस। यस, ये आपको मायने बिठाना है। ऑलमोस्ट जो भी है, सारी जितने भी मतलब यहाँ जो काम करा ना, ऑलमोस्ट सेम है। यस, आगे ना आपके चेहरे पे मुस्कान, बिग स्माइल आ गई हुई आपके चेहरे पे। ठीक है, अब हम उसको रीड करेंगे कि अब ये देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है मैं बताता हूँ। देयर आर ऑल्सो सिक्स पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है पहली तो आप कॉमन है, दूसरी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ना, जो पोजीशन है वो भी क्या है इस केस में, इस वाले मैटर में वो भी सेम है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 1 सेम है, पॉइंट नंबर 2 सेम है। थर्ड नंबर, जो साइज ऑफ इमेज है उसका जो नेचर है ना वो भी सेम है। फोर्थ हो गया जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज वो फर्स्ट 1 to 5 तक तो एक जैसा है, जैसा इसमें था ना, एज इट इज सेम नहीं है लेकिन एक जैसा है। मतलब फॉर द गिवन 5 पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर ऑफ द इमेज इज सेम। ओके, 1 2 3 4 5 में सेम है, एक जैसा है कॉन्वेक्स लेंस वाले मैटर में। लेकिन जो 6 पोजिशन है, 6 वाले मैटर में वहां भी एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, क्या इसमें अलग क्या है, अलग है मूवमेंट। जो मूवमेंट होता है ना, इसके पोजीशन ऑफ इमेज का, जो पोजीशंस का जो मूवमेंट होता है इमेज या ऑब्जेक्ट का, है ना, वो क्या मूवमेंट क्या है, अपोजिट नहीं। इस वाले केस में अपोजिट था, इस वाले केस में तो अपोजिट था कि एक राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज इस तरफ जा रहा है। इस वाले मैटर में यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा में दोनों का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है।